لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتخذ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل المبشرين والمنذرين مصداق طه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ فضل شریف تمام شیعان جہان بالخصوص علماء کرام، آیات نظام، بالاخص علیہ سستانی، دیگر علماء کرام جو بھی ہمارے ساتھ کرام ہیں، اور انصار گرامی خدمت میں عید سعید مبارک غدیر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم کو اسی ولایت پر زندہ رکھے، ہم کو دنیا سے بھی اسی ولایت کو دکھائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمیر بھائی یہاں پر ہے. ضمن عرض کرتا چلوں کہ میں یہیں مانگنی میں رہتا ہوں اور واقعی مجھے بہت خواہش تھی کہ دیرل کبھی اتفاق ہو جانے کا. رفقا کہتے تھے آپ کے بغل میں وہاں پہ ہے مشیہ بھی ہے، ہمارے تو سیاہ ہی نہیں، تو کیا اگر ہم لوگ ایسے ہی ہے، اس میں بھی لاک ڈاؤن میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ ہماری خوش قسمتی رہی مختار بھائی کے ذریعے سے اور سمیر بھائی کے اور برادر عزیز کے وہاں لینے کے لیے. بہرحال ایک جشن کا مولانا بھی ہمارے جاننے ہی والے ہیں، ملاقات ہو گئی. تو انشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ جہاں شیعہ لوگ ہوتے ہیں اپنا تو کھینچ کر آتے ہی ہے، جانتے ہیں آپ. تو تلاش تھی کوئی مل جائے کہ ہم لوگ بھی اشرا وغیرہ کرنا ہو یا مریض فضل بھی ہو تو چلے جائیں. ہمیں ڈوگری میں ہمارے ڈویژن کے لوگ رہتے ہیں، وہاں جانا پڑتا تھا، وہاں سے آنے جانے اور جانے کے بعد بہرحال یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، ملنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے. یہ بہانہ ہے کہ ہم شیعہ مل جائیں، ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے آج کا دن واقعا بہت ہی بابرکت دن ہے. ریاضوں میں ملتا ہے کہ اگر ایک انسان کو کھانا کھلایا جائے تو بھائی تو 1,00,000 جتنے پیغمبر ہیں اتنے انبیاء کے کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. آج کا وہ دن ہے، اسے عید اکبر کہا گیا ہے. ولایت ابھی میں تذکرہ کروں گا، زیادہ طولانی میں پڑھنے کا بھی عادی نہیں ہے. لہذا آج کا وہ دن ہے کہ ایک کسی کو اطعام کرنے کا ثواب جتنے انبیاء آئے ہوئے دنیا کے اندر سب کو اطعام کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے. صلوات پڑھیے پر محمد. اور یہ دن غدیر کا دن تو آپ ماشاءاللہ معاملے کے اندر میں دیکھا ہے، اور آپ کی دعا سے میں اپنے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا. تو دنیا کے اندر یہ جشن جس طرح منایا جاتا ہے کوئی اور جشن نہیں منایا جاتا. ہمارا عید بقرعید اب ذکر ابھی قربانی کر لیجیے، بکرا کام کیجیے ہی نہیں، لیکن اصل عید اکبر اسی کو کہا گیا. ہمارے ہندوستان میں کچھ زور و شور سے نہیں منایا جاتا جتنا فارن کنٹریز میں اس کو بالخصوص علاج میں. عید ڈائریکٹ آن لائن دیکھ رہا تھا رات. مولا علی آپ کو جاتے رہتے ہیں، نجف اشرف کو کیسا سجایا ہوا تھا، لائیو دیکھ رہا تھا میں. دوست میرے دکھا رہے تھے وہاں سے کہ کس طرح سجایا ہوا ہے، کس طرح وہاں پہ تبرکات اور جشن کا ماحول ہے، گفٹ وغیرہ
बांटे जा रहे हैं। वाकई ईद यही है। और एक जुमला कहते हैं वहाँ का सहारा लो कि ये ईद का दिन हर मोमिन के लिए वो दिन होता है जिस दिन गुनाह न करे। एक सलवार पढ़िए पर मोहम्मद वाले मुख्तसर में तकरीर होगी इंशाअल्लाह, महसूस होगी और मुसाफ भी होगी महसूस होगी इंशाअल्लाह। तो ये जो है खुदावंद आलम क्या फरमाता है, जब पैगंबर इस्लाम थोड़ा सा अपनी आखिरी हज से वापस हो रहे थे तो जिब्रील को हुक्म दिया, कहा जाओ जिब्रील पैगंबर से कहो, अय पैगंबर या ये रसूल बल्लिग पहुंचा दीजिए। क्योंकि ज़्यादा मजमा नहीं है, लेकिन मेरी आदत ये नहीं कि मैं मजमे को बताने के लिए या दिखाने नहीं, एक को भी मेरी बात पहुंच जाए तो मेरे लिए काफ़ी इंशाअल्लाह, शायद निजात का भी जरिए बन जाए, है या नहीं है। तो हज़ार पढ़ लिखे इसलिए मैं कहता हूँ कि बल्लिग आप पहुँचा दीजिए, रसूल पहुँचा दीजिए, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपकी तरफ आपके परवरदिगार की तरफ से भेजा जा चुका है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ भाई, कुरान कह रहा है कि आपकी तरफ आपके पास भेजा जा चुका है। इसका मतलब ये पहले से तस्करा हुआ रहा होगा कि पैगंबर गदीर का मैदान होगा, 1.25 लाख हाजियों के मजमा होगा। तो जब ये तुम्हारा परवरदिगार कहेगा पैगंबर पहुंचा दो तो तुम मेरा अली का ऐलान कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं कहूँ समीर भाई कहूँ, समीर भाई जब मैं पढ़ता रहूँगा मजलिस दरमियान में रहूँगा, समीर भाई चला दीजिए, तो सिर्फ मेरे और समीर भाई के दरमियान ये गुफ्तगू हुई है। वो जानते हैं क्या चलाना है, बंदूक चलाना है कि शरबत चलाना है कि गिफ्ट बांटना है या नहीं है, क्यों भाई है या नहीं है। तो अगर अल्लाह कह रहा है कि रसूल आप उस पैगाम को पहुंचा दीजिए जो पहले से नाजिल किया जा चुका है। अब उलमा बताएं भाई कोई चीज़ थी, कोई अम्र था, कोई आर्डर, कोई हुक्म था जो पहले से नाजिल किया जा चुका है या नहीं है। तभी तो हम कहेंगे वो चला दीजिए, सही भाई तरह से वो बांट दीजिए, तकसीम कर दीजिए। तो भाई पहले से गुफ्तगू रहेगी तभी तो, है या नहीं, वादे चीज़ है। अल्लाह क्या कह रहा है, पैगंबर को आप पहुंचा दीजिए। पैगंबर में कहीं ये नहीं पूछा, बड़े चैलेंज से कह रहा हूँ, तारीख इस्लाम में देखा दिए, तफसीर में देखा दिए, कहीं पैगंबर ने सवाल नहीं किया मैं क्या पहुंचाऊं। वाह सुभान अल्लाह। पैगंबर समझते रहे कि मुझे पहुंचाना क्या है, लेकिन खतरा ये था कि आप अपने आस्तीनी में ऐसे ऐसे सांप पल रहे थे, सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। मुनासिब नहीं समझ रहे थे पहुंचाना। फिर जिब्रील आए, एक मरतबा अल्लाह के तेवर, पूरे कुरान की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मौलाना जानते पुराने दोस्तों में से है, बंदा मैं 26 साल ईरान में रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने इश्तिहार पढ़ा हुआ है और मुझे 4 ज़बानें आती हैं। मैं डॉक्टरेट कुरान में मैंने किया है, मैं कुरान के बारे में पूरी डिटेल रखता हूँ। कहीं भी खुदावंद आलम का तेवर ऐसे नहीं बिगड़ा है जिस तरीके से गदीर के मसले में बिगड़ा है। वइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, ऐ पैगंबर अगर तूने इस विलायत का ऐलान न किया तो तूने गोया कुछ भी नहीं किया। बदल गया। दूसरी है मुफस्सिर लिखता है, फिर एक मरतबा आगे बढ़े, पैगंबर रुके नहीं, या आइयो रसूल बल्लिग, अकबर भाई मैं सिर्फ नहीं आयतों की तज़किया एनालिसिस करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, महसूस हो इंशाअल्लाह। पहुंचा दीजिए, पैगंबर चलते रहे, आदि चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। हालात सही नहीं है, जानते थे कौन कौन इसमें आए हुए हैं, है नहीं। अभी ऐलान करूंगा अचानक तो सब बौखला जाएंगे। ये मैं कुरान के पस मंजर से बयान कर रहा हूँ, ऑफिस में तो इसी नहीं कह रहा हूँ। पहुंचा दीजिए, फिर आगे बढ़े। दूसरी याद है क्या, वइल्लम तफ़अल, अगर आपने ये नहीं किया, ये नहीं पहुंचाया तो आपने गोया रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। 23 साल जिंदगी पैगंबर की, रिसालत की 23 साल, आप क्या पहुंचाते थे? नमाज नहीं पहुंचाया आपने, हज नहीं पहुंचाया, ज़कात नहीं पहुंचाया, पैगंबर तुम बेकार हो। मेरे अपने जुमले, कोई फायदा नहीं है। क्या होगा अभी, क्यों, कौन सा अमर था? कहा अगर तुमने नहीं पहुंचाया तो गोया रिसालत कोई काम अंजाम नहीं दिया, टोटल बंद कर दो। ये पैगंबर चलते रहे, अभी भी नहीं पहुंचा रहे, जबकि अल्लाह का लहजा कितना सख्त हो गया। लेकिन जब खुदा ने तीसरी बार जिब्रील से कहा, जिब्रील तुम जाओ और कहो वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, खुदा तुमको दुश्मनों के, लोगों के शर से महफूज रखेगा। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद। और फरमाना एक बार भाई, कहा कि तुमको लोगों के शर से महफूज रखेगा। जब ये गारंटी मिल गई मौलाना, अब
मुस्तहज़र हैं। जब गारंटी मिल गई कि जब मैं ऐलान करूंगा किसी के चेहरे नहीं बिगड़ेंगे, कोई मारेगा नहीं, कहीं से गोलियां नहीं चलेंगी, कहीं से तीर नहीं चलेंगे, उस जमाने के एतबार से कोई पत्थर नहीं मारेगा, अल्लाह अल्लाह मैं कहूँगा वो या रसूलुल्लाह ने कहा हो पालने वाले तू इतने बड़े अम्र का हुक्म कर रहा है, मैं अगर ये चिंगारी यहाँ पर जला दूं, इसको छेड़ दूं तो दुनिया यहाँ से वहाँ हिलने लगेगी। कहा नहीं, देखो अल्लाह हो या असमोका में नास, खुदा बन जालत तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह जब सुभान ये गारंटी ले लिया तब पैगंबर ने एक मरतबा कहा बुलाओ सलमान को, बुलाओ अबू जर को, सबको बुलाया गया। बुलाने के बाद ऊँट के कजाओं का मिंबर बनाया गया। आप जाते हैं एक बुलंदतरीन खुतबा देते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। देने के बाद एक मरतबा मौलाए कायनात को जब इकरार करा दिया मैं तुम्हें सबसे सच्चा हूँ, कहा हाँ डोलार भला या रसूलुल्लाह, तुम एतमाद करते हो, कहा बिल्कुल रसूलुल्लाह, रसूल मानते हो, कहा बिल्कुल रसूलुल्लाह। सब कहलाने के बाद एक मरतबा मौलाए कायनात के हाथों को पकड़ते हैं और उसे दोनों हाथों से बुलंद करते हैं और फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउल मौला। सुभान अल्लाह या अली। जिसका जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ आता हूँ, ये भैया अली मेरे बाद मौला हूँ आता रहेगा, याद रखिएगा। और तारीख कहती है इतना बुलंद किया कि बगल की सुहेदी दिखने लगी, यानी पूरे हाथों को उठाया। उठाने के बाद कहा देखो जब आफ्ताबे रिसालत छुप जाए वाह तो सुभान अल्लाह आफ्ताबे वापस से काम चलाते रहना। सलाम पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। और फरमाया आपने अब बुलंद किया, ये विलायत है। तो कहा कि अल्लाह यासिमु का मौलाना, मैं मेरे लोगों के शर्त महफूज रखूं, गारंटी ले लिया। वरना यकीन मानिए अल्लाह जो है हर चीज़ों पर गालिब है, अल्लाह हर दिलों पर गालिब है। जब कहा इनकी हिम्मत नहीं होगी जो आपके सामने बयान करेंगे, कुछ एतराज कर देंगे। अब जितने थे मुनाफिक बखिन लगे या रसूलल्लाह, देखिए भाई मुनाफिक शुरू होगी, चेहरे बिगड़े हुए, आंखें चढ़ी हुई। रसूल खुदा आपको मुबारक हो, मौला अली बैठे हुए, या अमीरुल मोमिनीन, कहा आप जो है हमारे मोमिनों के मौला हो गए, अमीर हो गए, मौला हो गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, मोमिनीन के हो गए, मोमिनात के सबके हो गए, आप उनको मोरबारी देने लगे। अब एक शख्स आता है कहता है उस जमाने थे ना इतराज करने वाले, जो करीबी थे, कितने लोग हैं जो करीबी थे खुलफा, वो ज्यादा स्थिति पर नहीं बिगाड़ रहे थे। तो पता था कि मुसलमान हो चुके थे, अगर ज्यादा बिगाड़ते तो कुर्ब का फतवा लग जाता। अब तो उसमें और ज्यादा शदीद थे। या रसूलल्लाह, एक शख्स आता है फेरी, उसमें आता कहता है कि या रसूल अगर आपने ये ऐलान अपनी तरफ से किया है, खुद अल्लाह का पैगाम नहीं है, अपनी तरफ से आपने किया तो आप पर नऊज़ बिल्लाह अज़ाब नाज़िल हो जाए, अपनी तरफ से काम किया। अगर नहीं आपने अल्लाह की तरफ से किया है, मैं सच्चा क्यों कहने उसके गुमान के मुताबिक, तो लिहाजा मेरे ऊपर कुरान ही कहता है सूरह मारिज में, देखिए सअलू में अज़ाबिल वाक़े, उसी को मुतल्लिक़ है। एक अजाब के बारे में खुद इंसान ने सवाल किया, कहा मुझे अजाब आना चाहिए, तो अजाब तो आएगा ही जब कहा फैसला हो जाए। वो खैमे रसूल से निकला भी नहीं था, वो निकला भी नहीं था तो ऊपर से पत्थर चला। मैं क्या तारीख में जुमले लिखे, मैं मिंबर से बयान नहीं कर सकता हूँ। ऊपर से गया और खारिज हो गया, भाई ढेर हो गया, मर गया। क्या हुआ भाई? कहा देखा मैंने, अल्लाह रसूल ने कहा मैंने अपनी तरफ ऐलान नहीं किया है, अल्लाह ऐसा चाहता था, अल्लाह का मंशा यही था। एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, शहर शहर गली गली, अली 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 अली, हम सबका मौला, अली अली, हम सबका आगा, अली अली, जिब्रील का टीचर, अली अली, हसनैन का बाबा, अली अली, नारे हैदरी। याद रखिएगा गदीर विलायत। और अकबर भाई मैं बात बता दूं, आज मेरे सुन्नत में जो फर्क है ना, देखिए कुरान का एक, इस्लाम एक, मस्जिदें वही है, नहीं अंबिया वही है, सब कुछ। इख्तिलाफ कहाँ पे? सिर्फ विलायत में इख्तिलाफ है, सिर्फ खुलफा में, खलीफा होने में, अव्वल व आखिर और दोनों से समझ रहे ना इख्तिलाफ है। अगर ये विलायत को कबूल कर ले तो मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ नहीं रहेगा। जब मान लेंगे तो मौसम को मानना पड़ेगा, मौलाना को मानना पड़ेगा, तो मौसम को मानना पड़ेगा, तमाम अंबिया को, तमाम मासूमीन को मानना पड़ेगा, नहीं है?
कि इख्तिलाफ यही विलायत पर आकर फंस जाता है। और मैं अक्सर ट्वीट करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, किसी ने कहा कि इत्तेहाद मैंने क्या मतलब, शिया सुन्नी हो जाए। तुम जो कहते इत्तेहाद कर लीजिए, इत्तेहाद कैसे हो सकता है? हमारा जब वहाँ इत्तेहाद नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, असल के पास इत्तेहाद ही नहीं हो रहा है या नहीं है? वहाँ भी इख्तिलाफ, तो हमारे कैसे इत्तेहाद हो जाएगा? क्या मतलब शिया सुन्नी हो जाए? वो तो होने से रहे, क्या हम हो जाए? कहा नहीं, ये नहीं है विलायत, असली विलायत मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम, मोहब्बत मुआविया अलैहिस्सलाम, ये मानिएगा। विलायत बहुत बड़ी चीज़। अब वो मैं अर्ज कर रहा था कि इसने क्या ऐलान कर दिया, अब पत्थर चला आया, उधर एक खाने काबा को गिराना था, जब अबरार लेकर हाथियों गया था, तो अब्दुल मुत्तलिब थे उसके मुखिया और उसके देख रेख मुतवल्ली, है या नहीं है? क्या हुआ? जाइए, कल इसका घर है वो बचाएगा। बात सही है भाई, काम मेरा घर ही नहीं है तो अल्लाह करे, अल्लाह ने बनवाया खाने काबा, अल्लाह बचाएगा। तो अल्लाह ने क्या इंतजाम किया? कंकरियाँ, कास्टिम मागून, कंकरियों ने मारा। अब अबीलें चली तो क्या हो गया? बिल्कुल ढेर, रेजे रेजे कुरान के जुमले, चबाए पूछे हुए, चबाए हुए भूसे की तरह, है या नहीं? पालने वाले ये भी तो आया था, इसे क्यों नहीं कंकरी फेंक दी, मार दिए होते? देखिए फर्क है, शायद अल्लाह समझे नहीं। वो मेरे घर का मसला था तो मैंने पनिशमेंट में थोड़ा सा डिस्काउंट दिया हुआ था। मेरे जब वली का मसला आ जाएगा तो जो रखिएगा, मेरे वली का मसला आ जाएगा, वलीउल्लाह का मसला, जब अल्लाह का मसला था, अब ये वलीउल्लाह का मसला आएगा। अगर वलीउल्लाह पे के ऐलान पे कोई शक करेगा तो कंकरी से नहीं मारूंगा, पत्थर से मारूंगा, ताकि बिल्कुल ही निस्तो नाबूद हो जाए। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है या नहीं है? तो विलायत अली, पत्थर आया उधर से, कुरान कह रहा आया और वो ढेर हो गया, वहीं पे इंतकाल हो गया, मर गया, इसको नाबूद। पता चला पैगंबर इस्लाम ने ये ऐलान अपनी तरफ से नहीं किया है, अल्लाह का हुक्म था। अब अर्जुन कर रहा है, ये सब कर रहा था कि अल्लाह ने कहा कि है रसूल ऐलान कर दीजिए। वहाँ पे मजहूर का सेना है, मौलाना बैठे हुए, मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो नाजिल किया जा चुका है। अब उन्होंने बताया भाई कब नाजिल किया गया? अल्लाह ने कब कहा पैगंबर से कि आप जो है जब मैं गदीर खुम का मैदान होगा आपको ऐलान करूँगा, ये नहीं कहूँगा तो आप ऐलान कर दीजिएगा। तो आइए मैं पढ़ता हूँ सूरह व नज्म, शायद आपने सुना ना कभी, सूरह नज्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही हुआ। आगे चलते कहता है औहा इला अब्दिही मा अवा, शब मेराज का वाक़या है। अब कह रहा है खुदावंद आलम के अपने बंदे को बुलाया और बुलाने के बाद जो वही करनी थी, जो कहना था, कह दिया। अब मुफस्सिरीन से पूछिए कि अल्लाह ने शब मेराज पैगंबर को बुलाकर क्या कहा? तो औहा इला अब्दिही मा अवा, ऐलान। मेरा एक सवाल, पालने वाले, जो मैं कुरान में ज़्यादा काम किया हूँ, बता रहा हूँ, एतराज़ मेरा ये, भाई आपने क्यों नहीं कुल्लम कुल्ला ऐलान किया? ये बुला करके पैगंबर को वहाँ बुलाने के बाद करीब आदना वदना फदल्ला काबा कौसैन और बिना, कह रहे कि करीब हुए, यहाँ करीब हुए, इतना करीब हुए कि दो कमानों का फासला रह गया। यही तो कुरान में है शब मेराज। वहाँ जब बोलते हैं कहते हैं अल्लाह बोलता नहीं। जब किसी ने कहा कि आओ और करीब आओ, कहना चाहा तो आवाज़ किसकी आई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला कायनात। तो कहते नहीं अरे यहाँ भी मौला वहाँ भी मौला, हाँ तो अली की आवाज़ में। अब अल्लाह अली की अजमत को समझिए, अल्लाह इतना चाहता है मौला कायनात को कि जब बोलना भी चाहता तो लेजा अली का अपना लेता है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भैया नहीं है लेजा अली का। कौन बोल रहा है? अली बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं। तो हरसू अली के लेजे की आवाज़ आ रही थी, अली के बोलने की आवाज़ आ रही, बुलाया। अब सवाल यही है कि भाई जब आपको ऐलान करना था तो आप कह देते कि लोगों देखो ये मैं गदीर का कुरान में कोई आयत आ जाती इस तरीके से, शब मेराज बुला करके पैगंबर को एक एहतमाम करना, उसमें दुनिया की और भी चीज़ें थी, जो सेब आया था, जो गए थे, खैर इसे तवल्लुद होना। लेकिन वहाँ पे पैगंबर को अल्लाह ने बताया सभी भाई क्या कहा? तो आओ हाँ इला अब्दिही मा अवा, जो कहना था कह दिया। तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, जो कुछ वही करनी थी मौला रसूलुल्लाह को बुला करके वहाँ मेराज में कह दिया। तो क्या कहा? अब मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वहाँ विलायत अली इब्न अबी तालिब के ऐलान का जिक्र किया था। तो जो वहाँ से इधर आता, इसीलिए कहा कि जो मैं तुमको पहले से बता चुका हूँ,
बता चुका हूँ। तो भाई पहले से तभी तो बात हुई, पहुँचा दिए सभी सभी बात ये तस्लीम कर दी, पहले से हम मांगी तभी तो पता चले क्या उनको बांटना है। अल्लाह का पहुँचा दी, वो पहुँचा दी है। माउंट तेरा जो नाजिल किया जा चुका, कहाँ नाजिल किया? सूरह वर्णन बता रहा हूँ आपको। वहाँ इलाते ही मावड़ा जो कहना था शेर मेरा चलाकर, वहाँ पे जाकर के उन्होंने बता दिया। तो मुफस्सिर बताएगा क्या बताया। इमाम के हदीस से लिखता है, लिखते हैं कि वहाँ पे किसी अम्र विलायत का तस्करा किया खुदावंद आलम ने। तो सवाल ये नहीं बुलाने की क्या जरूरत थी, छुपा के रखने की क्या जरूरत है, देवता का ही नहीं। तो कहते हैं कि अभी मैं कहूँ, अभी समीर भाई मिसाल से दे रहा हूँ कि ताकि बात समझ में आ जाए। इन्होंने कहा मौलाना आज ही मेरे घर पे टेलीफोन किया, मैं कहूँगा भाई आप बता दीजिए। तो खास बात होती है मौलाना तो उसको करीब बुला कर कही जाती है, तो रखिएगा। कहते हालात बड़े खराब है, मुनाफिकों का मजमा चल रहा है, हालात मुनाफिकों से खराब चल रहे हैं, हर तरफ मेरे आसपास मुनाफिक रहते हैं। अब फोन के मौलाना आ जाइए, तो क्या करना है, निकाह पढ़ना है, मरीज पढ़नी है, क्या पढ़ना, कुछ करना है, कहाँ आइए तो बताओ। अरे यही टेलीफोन में बता दिए, क्या नहीं टेलीफोन भी रिकॉर्ड हो सकता है या नहीं है। तो इतना मेराज अली इतना मुहिम मसला था कि अल्लाह ने पसंद नहीं किया कि सरे आम ऐलान कर दिया जाए। तो खुदावंद आलम जानता था इतने मुनाफिक हैं पैगंबर के आस-पास के, दूसरे मुनाफिकून आ गया। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद सही कि नहीं सही है। तो कहा नहीं आप आइए, तो शब मेराज गए। अब वहाँ अल्लाह ने वदिया कि देखो जब गदीर का मैदान होगा, आप हमारे आने वाले होंगे, आखिरी हज होगा, है या नहीं है। जब मैं कहूँगा पहुँचा दो तो तुम पहुँचा देना। अल्लाह बेहतर जानता था सिचुएशन को, हालात को बेहतर जानता था कि कहाँ पे ऐलान करना है। तब कहा मिर रब्बी, अब बात वादे हुई क्यों? कहा कि उनसे जो नाजिल किया जा चुका है, तो पहले किया जा चुका, तो पैगंबर समझ के क्या करना है। लेकिन जब गारंटी ले लिया, गारंटी लिया, तब पैगंबर ने ऐलान किया। एक सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले विलायत अली के बरकुछ नहीं होने वाला है। अली की मोहब्बत है। मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे बड़े दोस्त हिंदू भी हैं, बड़े अहले सुन्नत भी हैं, मैं किसी पर नहीं कोई कर नहीं पाता, क्या बहस करूँ। विलायत क्या हो, इस पे आ जाओ। अगर अमा वो खलीफा कैसे हो सकता है जो खुद कहे कि मेरे लिए शैतान है, कभी कभी मुझे टेढ़ा कर देता है। जब टेढ़ा करते हुजूर, वो कहता है खलीफा, जब टेढ़ा कर दे तो मुझे सीधा कर देना। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो खुद टेढ़ा हो, वो टेढ़ा क्या टेढ़ा कर सकता है, सीधा कर सकता है या नहीं है। अच्छा मौला की बात चलती है, कहते हैं हमारे दरमियान जब अली हो तो हमें कौन अफजल हो सकता है। हम सबसे, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे थे, हालात ऐसे बने हुए थे कि नहीं, खिलाफत क्या है, जबरदस्ती गासिबाना तरीके से ली गई और चलता रहा। बहरहाल तो मेरा अली मोहब्बत अली है। अब अजीज़ाना ईरान जुमला कहता हूँ, अब आपको पढ़ना हो इस दुनिया में, आपकी बिल्डिंग है, कहीं इधर उधर मुसलमान रह रहे, कोई भी हो, तो पूछे कौन बाईमान है, कौन बेईमान है, कौन बादीन है, कौन बेदीन है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप तस्करे अली कर दीजिए। अगर चेहरा खिल जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो समझिएगा ये है या नहीं, मोमिन है, बाईमान है। लेकिन मुंह टेढ़े हो जाए, हवाइयाँ चलने लगे चेहरे पर, जर्द पड़ने लगे, समझिए कि ये बेईमान नहीं, पक्का बेईमान है, ये बादीन नहीं, पक्का बेदीन है। सलवार पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ समझे आप, ये पक्का बेदीन है। अमा अल्लाह ने बहुत तवज्जो करके भाई, बहुत सुनने से कह रहा हूँ तवज्जो, मैं तो सुनता हूँ, बहुत अटेंशन करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की मीरास को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। बेटे का नाम, बाप का नाम ईमान रख दिया, बेटे का नाम इस्लाम रख दिया। तो रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह ने इस मीरास से ईमान और इस्लाम को, पहली सीढ़ी इस्लाम है, फिर ईमान है। बेटे का नाम, बाप का नाम ईमान रख दिया, मौला का नाम, बेटे का नाम इस्लाम रख दिया। आप मौलाना ये अपनी जिला कैसे बात करते हैं, लोग बॉम्बे में ऐसी करते हैं, ये कैसे कह दिया भाई। मौला मैं नहीं कर रहा हूँ, पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं। खंदक का मैदान है, क्या कहा, बरज़, मौला का नाम निकल रहे हैं, हम बिन के सामने कह रहा है, पैगंबर कह रहे हैं बरज़ कुल्लु ईमानिन, कुल्ल ईमान। अब यहाँ वहाँ ईमान का रास्ता कर लिए, सब ईमान, अली के पास पूरा ईमान है, कुल ईमान जा रहा है।
किसके मुकाबले में? कुल्ले कुफ्र के मुकाबले। तजिया से कर रहा हूँ मैं। कुल्ले ईमान सभी भाई कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, पैगंबर का जुमला है। और इधर क्या कहते हैं आप? ज़ियारत वारसा, यहाँ तो मस्जिद पर मौलाना पढ़ाते ही रहते होंगे, पढ़ते ही रहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या हज़रत नबी गोया पूरा में पढ़ूंगा नहीं, पढ़ते नहीं? ईसा के, मूसा के, यहया के, तमाम के अंबिया के जितने अंबिया हैं गुजर गए, सबके वारिस कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। भाई सबका वारिस है तो किस लिए आए थे? दिन में खिदमत, दिन का फैलाने के लिए दिन को, है या नहीं है? तो मालूम हुआ इस्लाम हुसैन को कह दीजिए, है या नहीं? उधर ख्वाजा अजमेरी ने क्या कहा? क्या कहा? शाह अस्त हुसैन, देखिए वो इसी नहीं थे, उनका शजरा अलग से मिलता है। कहते शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। तो जो रखिए मैं क्या कहा? हुसैन दीन है, दीन पना अस्त हुसैन, हुसैन दीन को पनाह देने वाले हैं। सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद हक़ा की बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो मालूम हुआ ईमान का नाम अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब देखना हो किसके पास ईमान भी है, इस्लाम भी है, तो दोनों बाप बेटा के तस्करा करके देख लीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो फरमा रहे हैं, लिहाजा जो मुसलमान है बगैर विलायत अली के, और एक हदीस है इकमालुद्दीन में भी है, लिखते हैं कि अगर आए अली, आपने सुना होगा, तस्करा करता हूँ, आए अली अगर तेरे दुश्मन दुनिया में न पाए जाते तो मैं जहन्नम को खल्क न करता। और मोतबर किताब में है, ज्यादा मैं सरल पे ज्यादा नहीं बैठ सकता, लेकिन मोतबर किताब में चूंकि है, कहते हैं कि अरे अली अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं होते तो मैं जहन्नम को खल्क नहीं करता। अल्लाह कह रहा है, ऐसे खुशी में अल्लाह कह रहा है कि मैं दुश्मन को खल्क नहीं करता, जहन्नम को खल्क नहीं करता। तो मालूम हुआ कि जहन्नम किसके लिए बनाई गई? दुश्मन है। और याद रखिएगा हर शिया जन्नत में जाएगा, वो अलग चीज़ है कि शिफात के जरिए से है या नहीं है, तो उसको जो कुछ सजा मिलेगी वो अलग मसाइल है, वो हम उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन याद रखिएगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नहीं चाहेंगे इस जगह पर एक बिल्डिंग के अंदर जो इंसान एहतमाम कर रहा हो, जो लोग रहमत कर रहे हैं, मोहब्बत की दलील है। याद रखिएगा, मैं चूंकि मरीज नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं इजाजत नहीं जाना चाहता। ये शाअर इलाही मिन तक़वल क़ुलूब, शाअर इलाही क्या है? अज़ादारी करना, मस्जिद तौबा करना, महफिल करना, जश्न करना, कुर्बानी करना। मौलाना ये शाअर इलाही है, क्या है? ये तक़वे की निशानी है। जो आप समीर भाई या अकबर भाई या आप ब्रदर जो भी हम नहीं जानते, मैं नाम इसलिए नहीं लेता, तुम खुश हो जाएंगे समीर मेरा नाम मौलाना, ऐसा बात नहीं है। सब जो भी मोमिन है, जहाँ भी तमाम ये ख़वातीन है, खारान जो भी है, एहतमाम करें। याद रखिए ये तक़वे की निशानी है, मैं बता रहा हूँ। ये ईमान के कवि होने की दलील है। जो आप बैठे हुए हैं 10 आदमी है, 20 आदमी बैठे क्यों कर रहे हैं? ये तक़वे की, अल्लाह कह रहा है इन्ना शाअरल्लाह मिन तक़वल क़ुलूब, ये तक़वाए क़ल्ब और तक़वाए दिल की निशानी है जो आप ये महफिल कर रहे हैं, और ये मोहब्बत अहले बैत की निशानी है जो महफिल कर रहे हैं। ये ना समझिएगा, इस चाहे महफिल अज़ा हो, चाहे महफिल जश्न हो, इसमें उलमा अंबिया आते हैं, चाहे मासूमीन आते हैं, मौलाए कायनात है, शहजादी आती हैं, रिवायात हैं, सिर्फ मजलिस में नहीं, जो भी जश्न के जहाँ पे नाम लिया जाता है वहाँ सब आते हैं वहाँ पर। तो ये है जहाँ बैठे बराबर बैठे हुए क्यों आए? यहाँ रहते कहीं से मौलाना कि ये कौन जश्न करने के लिए। आज नदीर का दिन है, याद रखिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ सबसे, हर मोमिन के लिए ईद का वो दिन है जिस दिन गुनाह ना करे। खुशी किस लिए होगी आपको? गुनाह करती होगी नहीं, खुशी इंसान को गुनाह नहीं करता है तब खुशी जाकर होती है, या नहीं है? तो याद रखिएगा जाए ग्रामी, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। और ये विलायत के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यार मैं तो बैठ करता रहता हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं कहता तुम लोग बेकार नमाज़ें पढ़ते हो, इतना करते पड़ जाते हैं, पेशानी में नहीं जाते। 5 टाइम मैंने आंखों देते हमारे मतलब में 5 टाइम मुद्दे मुझे आगे बता रहे हैं, सिर्फ जो है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलिय्युल्लाह कह देते हैं। अरे ज़ाहिरी तो कह दो, समझो नहीं, ज़ाहिरी ही कह दो, मुसलमान शिया तो हो जाओ, ज़ाहिरी कह दो कुछ तो। लेकिन बड़े कट्टर हैं। अब्दुल बासित मिस्र का बहुत बड़ा कारी, ईरान ने पेशकश किया तुम्हें सोने पे तोड़ दूंगा, सिर्फ अपनी अज़ान में क्योंकि आवाज़ अच्छी थी तुम अलियुन वलियुल्लाह कह दो। मगर वही शजरा कहाँ करता? सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और मैं ये भी कहता हूँ उनसे, देखो तुम कहीं जा रहे हो, मैं नहीं करती हूँ, इसलिए हमने कहा तुम्हारी गाइडेंस गलत हो रही है।
رہنمائی غلط ہو رہی ہے. کیوں؟ صرف قرآن کافی نہیں ہے. اما قرآن کافی ہوتا تو ہر آدمی اپنے بچے کو بیٹا پڑھتا ہوگا, یہ بچہ آپ کو بچے پڑھنے جاتا ہوگا, اسکول کیوں بیٹھتے ہیں؟ گھر میں بیٹھو نا, کیا مطلب ہے؟ نہیں پڑھیں گے, کتاب کافی ہے, ٹیچر نہیں چاہیے. اللہ خود اعلان کر رہا ہے قد جاءکم, قرآن کیا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے میں نے نور بھی بھیجا اور کتاب مبین واضح قرآن تو یہ بھی بھیجا. اللہ نے نہیں کہا کہ صرف قرآن بھیجا, توجہ زیادہ, صرف قرآن بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو نام ہے تھیوری کا نام ہے. قرآن ایسی بک ہے جس کے اندر تھیوریاں بتائی گئی ہیں, جس کے اندر فارمولاز بتائے گئے ہیں. توجہ رکھیں, قرآن کتاب کا نام ہے. قرآن گائیڈنس تو کر دے گا, اپنے ایک مقصد تک پہنچانے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. وہ صرف اہل بیت گارنٹی ہے. صلوات پڑھیے پر محمد وعلى محمد پر. صرف اہل بیت گارنٹی. جیسے آپ بہت مطمئن رہیے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں شیعہ صرف جنت میں جائے گا, کیونکہ میں اپنے موضوع سے ہی ہٹنا چاہ رہا ہوں, مطلب تو باتیں بہت رہتی ہیں. انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ملا تو عرض کروں گا. صرف قرآن کا حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب نہیں چاہیے. آپ گھر میں بیٹھا, میرا گھر میں پڑھا لو, نہیں چاہیے. چلو گھر میں رہے, کتاب کافی ہے. ارے بھائی کتاب کو سمجھانے والا بھی تو ہو. اگر علم اتنا ہوتا ہمارے پاس کہ ہم صرف قرآن کو سمجھ کر جنت تک پہنچ جاتے. اچھا ایک بات اور یہ ہے, سمیر بھائی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بتائیے, نہیں واقعہ بتائیے, سامنے کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے, اللہ کو راضی کرنے کے. راضی کیوں کریں گے؟ جنت میں, جنت جانے کے لیے. آپ کیوں, میں اپنے کو کہتا ہوں, میں بھی اسے پڑھتا ہوں جنت میں جاؤں. وہ تو صرف مولا کائنات ایسا عابد ہے جو کہتا ہے پالنے والے, نہ تو تیرے جہنم کے خوف سے میں نے عبادت کی ہے, نہ تو جنت کی لالچ میں کی ہے, تجھے لائق عبادت پایا اس لیے تمہاری عبادت کی ہے. صلوات پڑھیے پر محمد والے نہیں ہے. کوئی جھوٹا جو کہے کہ میں اللہ کو اس لائق سمجھ, تمہاری کیا حیثیت ہے, تم کیا اللہ کو لائق سمجھو گے؟ صرف علی کہہ سکتا ہے, وہ یہ نہیں ہے. مولا کائنات کہہ سکتے ہیں, نہیں, نہ جہنم کے خوف سے بھی جہنم میں ڈال دو گے, نہ تو جنت کی لالچ میں. جنت تو میرا گھر ہے, مجھے کیا لالچ ہوگی, ایسا نہیں ہے. تو کہا نہیں, لائق عبادت سمجھا پالنے والے. وما عبدت خبر من ناری وتعمل فی جنتی ولكن وجدت قهرا لنوات فعبدت. ایسا نہیں بولا, کہا کہ نہیں, لائق عبادت پایا اس لیے بات کر رہا ہوں. تو بھائی سب مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. پہلے سنت سے پوچھئے جنت میں کیا کر کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بعد مسلمانوں امت میں, مسلمان مراد امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. آپ دیکھیے ہندوستان میں بہت سے فرقے, دہلیہ, محدثیہ, فلاں قدسیہ, ایسے کر کے مسلمانوں بہت سے فرقے ہیں. ہندوؤں کے فرقے الگ ہیں, ہے نہیں, تو یہ ہے, تو اب سب جانتے ہیں. تو کہا کہ 73 فرقے ہو جائیں, لیکن اس میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. بھائی نماز کیجیے, پڑھتے ہیں, جنت جاتے. یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ دور ہو جائے گا, ہے نا. ہمارے حیثیت ہی نہیں ہے, پہچانتے نہیں. سربراہ پڑھی میں کھلی بات کرتا ہوں, میں کوئی تکلف تعارف نہیں کرتا ہوں. باتوں میں کرنا بھی نہیں چاہیے کہ میں نہیں, اس لیے مولانا جھوٹ ہو جاتا ہے. یہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. سمیر بھائی نہیں, اسے مجھے جنت کے لیے واقع ہے. قرآن نے خود بتایا کہ ہم نے معاملہ کیا ہے بندوں سے 2 طرح کا. ایک معاملہ مولانا جو شب حیثیت پیغمبر کے بستر پر سوتا ہے تو نہ کیا مرضی الہی کو خرید لیتا ہے. قرآن کے پڑھوں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں, جو جب اپنے نفس کو بیچ کر کے میری مرضی خرید لیتے ہیں مولا کائنات. پھر کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے ان اللہ اشترا, قرآن کیا ہے, ان حوالہ کے بتا دوں گا بعد میں, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے ان کے نفس کو, ان کے مال کو خریدا ہے. کس لیے؟ تاکہ ان کی عوض میں کیا دے, جنت ادا کرو. قرآن کیا ہے؟ تو قرآن نے صرف 2 معیار بتائے ہیں کہ انسانوں میں جو مال کو بیچنے والے ہیں, توجہ رکھیے گا, صلوات پڑھیے پر محمد والے ہوں پر. صرف 2 طریقے کے ہمارے خریدار. اللہ کہہ رہا ہے, ایک اپنے نفس کو بیچ کر میری مرضی خریدتا ہے مولا کائنات سے میرا. اور بندوں کیا کہا کہ بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بندوں سے اللہ نے
उनकी मर्जी के अपने उनके नफ्स के मुकाबले में जन्नत दिया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिन से उनके अम्वाल को, उनके नफ्स को खरीदा ताकि उनको जन्नत नसीब अदा करे। तो अल्लाह खुद कह रहे हैं जन्नत देंगे हम तुमको। नफ्स को क्या खरीदने मतलब? गुनाह ना करें आप, नमाजें करें, इबादत करें, है ना, शहीद हो जाइए, जान दे दीजिए अल्लाह के नाम पर, है या नहीं? अम्वाल क्या है? अल्लाह की राह में ज़कात करिए, खैरात करिए। जैसे ये सब आपको थोड़े तब क्या है, ये सब खैरात ही चीज़ है, मतलब ये सब का सवाब ऐसे दिया जाएगा। तो अल्लाह इसको पसंद करता है। तो कहा कि हमने मामला कर लिया है बेअन्ना लहुमुल जन्नह, उसके मुकाबले क्या हुआ समीर भाई? जन्नत। अब ये तो नहीं है कि नहीं मैं तो अल्लाह को जो है लायक इबादत, अल्लाह खुद समझता है कि आप किस लिए बात करते हैं। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद चाहता हूँ मैं गेम करने आ जाता हूँ, माफ कीजिएगा। तो दो तरीके के खरीदार हुए, बेचने वाले। खरीदने वाला अल्लाह है, किसी से खरीदता है तो जन्नत देता है, किसी के नाम तो खरीदता है तो अपनी मर्जी देता है या नहीं? अब ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है मौलाना। तो कहा कि देखिए अब ये कोई है कि नहीं मौलाना मैं इसलिए पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह को बहुत पसंद करता हूँ, ये मतलब अल्लाह को पहचानता हूँ, मैं जन्नत के तौर से नहीं और जन्नत की लालच में नहीं, इसी मौला कायनात है उन्हें मारिफत खुदा को आखिरी हद तक पहुँच जानते थे अल्लाह क्या चीज़ है या नहीं है। कभी तो नजरी ने क्या कहा कि हमें यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अल्लाह खुदा है या तू खुदा, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। जो काम खुदा का है वो तू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो काम किसी और ऑफिसर का हो, कोई और आदमी करे, जो डीएम काम है कोई पुलिस करने लगे तो सामने वाला डीएम पुलिस को डीएम समझेगा, नहीं बोला तो काफी नहीं। तो क्या